Hello students, a very good morning to everyone. This is the beautiful world of science and technology. I welcome you all for the next chapter of your syllabus. This is the last chapter of your first semester. So in this session, we are going to start our new chapter. The name of this chapter is current electricity. So in this chapter, we will discuss about the some important concepts like potential and potential difference, electric current, conductor and the insulators, electrical resistance and Ohm's law, connection of resistors and electrical resistors. So these concepts we will discuss in this chapter. इस चैप्टर में हमें इन कंसेप्ट के बारे में क्या होगा डिस्कशन कर लेना है। तो कौन से कंसेप्ट रहेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, conductor and the insulators, electrical resistivity, Ohm's law, connection of resistors in series and parallel. तो इन कंसेप्ट के बारे में इस चैप्टर में हमें क्या है डिस्कशन करना है। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर है। लेसन फिजिक्स का है आपका क्या है लास्ट चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ टुडे सेशन इज electric current. So what is the meaning of electric current? An electric current is flow of electrons through a good conductor of electricity. Now, electric current is a flow of electrons through a electrical conductors is called as the electrical current. इलेक्ट्रॉन्स का करंट कैरी कंडक्टर में क्या होना, फ्लो हो जाना, वो मूव होते रहना या ट्रांसफर होना, उसको हमें क्या कहना है तो इलेक्ट्रिक करंट कहना है। एंड इलेक्ट्रिक करंट is the flow of electrons through a good conductor of electricity is called as a electric current. So current I is defined as the charge passing through a conductor in a unit time. एक यूनिट टाइम में एक कंडक्टर से कितने चार्ज फ्लो होते हैं उसको हमें क्या करना हो तो करंट करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट या डिफाइंड इलेक्ट्रिक करंट? करंट आई इज डिफाइंड एज द चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो कंडक्टर से जो चार्जेस फ्लो होते हैं या पास हो जाते हैं उसको हमें क्या कहना होगा तो करंट कहना। इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। इफ q चार्ज flowing through cross section of a conductor in time t, then now see अगर q चार्जेस हर कंडक्टर में पास होते हैं t टाइम में, so current I is equal to ध्यान में रखें, so current I is equal to q by t। ध्यान में रखें, q means charges and t means time। listen, एक यूनिट टाइम में कितने चार्जेस फ्लो होते हैं उसको हमें क्या कहना हो तो इलेक्ट्रिकल करंट्स कहना। अंडरस्टैंड? इफ चार्जेस q is flowing through a cross section of a conductor in time t, then the electrical current I is equal to q by t। the unit of a charge in a SI unit is a coulomb। ध्यान में रखिए, चार्जेस का जो SI यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा वो तो the SI unit of charges is a coulomb। उसका यूनिट क्या रहेगा coulomb, coulomb। करंट इज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर। करंट को किसमें एक्सप्रेस किया जाता है तो एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर। एंड द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। ध्यान में रखिए, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहेगा वो तो 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना रहेगा वो तो 1.6 into 10⁻⁹। Listen, what is the meaning of electric current? ध्यान में रखिए एक बार फिर से, an electric current is the flow of electrons through a conductor is called as the electric current. So current I is defined as the charge passing through a conductor in a unit time is called as the electric current. If charge q is flowing through a cross section of a conductor in time t, then I is equal to q by t। Listen. Now see the next one concept. What is the meaning of ampere?
नेक्स्ट वन इज एम्पियर। तो हम डिस्कशन कर लेंगे एम्पियर के बारे में। One ampere current is said to flow in a conductor if 1 coulomb charges flow through it every second. Now see, every second में अगर 1 कूलम चार्ज अगर कंडक्टर से फ्लो होता है तब हमें क्या कहना है, 1 एम्पेयर करंट कहना है। 1 एम्पेयर करंट is said to flow in a conductor if 1 coulomb charge flow through it every second. every second में अगर 1 कूलम चार्ज अगर कंडक्टर से ट्रांसफर होता है तब हमें क्या कहना हो, तो 1 एम्पेयर करंट कहना है। 1 एम्पेयर करंट इज सेड टू बी फ्लो इन अ कंडक्टर इफ 1 कूलम चार्जेस फ्लोस थ्रू एवरी सेकेंड। एवरी सेकेंड में, हर एक सेकेंड में अगर किसी कंडक्टर से 1 कूलम अगर चार्ज ट्रांसफर होते हैं या पास होते हैं तब उसको हमें क्या कहना हो, तो 1 एम्पेयर करंट है, जिसको कहते हैं 1 एम्पेयर। So now see, 1 ampere is equal to 1 coulomb by 1 second। लिसन, तो एक जो चार्जेस है हर एक सेकेंड में जो इलेक्ट्रिक करंट से ट्रांसफर होते हैं उसको हमें क्या कहना है, तो 1 एम्पेयर करंट कहना है। 1 एम्पेयर करंट कब कहा जाता है, जब कब किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज एवरी सेकेंड में क्या हो, तो पास होता है तब हमें क्या करना है, 1 एम्पेयर करंट करना है। लिसन, नाउ नेक्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम डिस्कशन कर लेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट वन, what is the meaning of electric potential। नेक्स्ट जो कंसेप्ट रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। what is the meaning of electric potential? The electric level at a point is called the electrical potential at that point. Now see, the electric level at a point is called the electric level at that point. Its SI unit is volt। जो इलेक्ट्रिकल लेवल रहता है 2 पॉइंट के बीच में उसको हमें क्या कहना है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहना है। द इलेक्ट्रिक लेवल एट अ पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। जो इलेक्ट्रिकल लेवल रहेगा किसी पॉइंट का उसको हमें क्या कहना है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इट्स SI यूनिट इज वोल्ट। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का SI यूनिट क्या रहेगा, वो तो वोल्ट रहेगा। लिसन, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज उसका जो पोटेंशियल का जो SI यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, वो तो वोल्ट रहेगा। नेक्स्ट वन कंसेप्ट नाउ पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference. So what is the meaning of a potential difference? Now see, the potential difference between 2 points in electrical field is the amount of work done. Now see, the potential difference between 2 points in an electrical field में जो potential difference 2 points के बीच में रहता है is the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to the another point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो पॉजिटिव चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, जो वर्क डन होता है 2 पॉइंट के बीच में, उसको हमें क्या कहना हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहना है। अंडरस्टैंड, द पॉजिटिव चार्जेस फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। जो पॉजिटिव चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या हो, तो ट्रांसफर होते हैं, जो वर्क होता है वहां पर उस वर्क को हमें क्या कहना हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहना है। लिसन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। An electrical field is the amount of work done in moving unit positive charges from one point to the another point। its SI unit is the volt। इसका SI unit क्या रहेगा, वो तो volt रहेगा। its SI unit is a volt। Listen, now see, so potential difference V is equal to
is equal to work by charges. Work by charges W by Q. W by Q is the potential difference. Listen, potential difference between 2 points is an electrical field. Is the amount of work. Positive charges flow from one point to the another point is called as the potential difference. Now see, with the help of a diagram, we easily understand potential difference and flow of electricity. तो डायग्राम के माध्यम से हम उसको क्या इजीली क्या है समझ सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. Potential difference and flow of electricity with the help of wire. Now see, take two strands. This is the connecting wire between the 2 points. This one is a conducting wire. High electrical potential A क्या रहेगा? High electrical potential. High electrical potential, and this one is a low electric potential. Low electric potential. एक है अपना पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, and this one is a negatively charged conductor. Point A and B points are here. This one is a negatively charged conductor. Negatively charged conductor. ये दोनों के जो स्टैंड रहेंगे इंसुलेटिंग कवरिंग रहेंगे. ये ज़्यादा 2 स्टैंड्स है. ये क्या है? इंसुलेटिंग कवरिंग है. नाउ सी, potential difference and the flow of electricity we can easily understand with the help of this diagram. तो डायग्राम के माध्यम से हम लोग इसको क्या है इजीली क्या है समझ सकते हैं. In the figure, conductor A is at higher potential than conductor B. देखिए, conductor A is a higher potential than conductor B. इस डायग्राम में जो कंडक्टर A है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो तो B से क्या हो तो ज्यादा है. कंडक्टर A is a higher potential. कंडक्टर A का क्या रहेगा हायर पोटेंशियल देन कंडक्टर B. When these two are connected by a connecting wire, अंडरस्टैंड. अब हम क्या बोलते डायग्राम के बारे में डिस्कशन करें. पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर A is higher than कंडक्टर B. तो कंडक्टर A का जो पोटेंशियल रहेगा वो कंडक्टर B से क्या बोलते ज्यादा है. When these two conductors are connected by connecting wire, potential difference is created between these two ends and electrons will flow from B to A through the wire. Now see, when these two conductors are connected with the help of a wire and potential difference is created between its 2 points. जब ये दो जो कंडक्टर्स है इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग वायर कनेक्ट किए हुए कनेक्ट करने के बाद उनमें क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है क्रिएट हो जाएगा. एंड इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम B to A. इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा तो फ्रॉम B कंडक्टर टू A कंडक्टर क्या हो पास होते रहेंगे. दिस फ्लो विल कंटिन्यूस अंटिल द 2 कंडक्टर्स. नाउ सी, ये फ्लो क्या हो तो कंटिन्यू क्या है चलते रहेगा. A and B have the same potential. कब तक चलते रहेगा जब तक दोनों को इक्वल क्या बोलो तो पोटेंशियल नहीं आता है तब तक के क्या बोलो तो होते रहेगा. Until their potential difference becomes zero. दोनों का पोटेंशियल क्या बोलो तो फाइनली क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा. Only then will flow the electrons stop. तब भी इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलो तो फ्लो होना क्या है स्टॉप हो जाएगा. ध्यान में रखिए यहाँ पर 2 कंडक्टर्स है. एक का पोटेंशियल क्या बोलो जाता है B से. जब भी हम दोनों को कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे कनेक्ट करने के बाद दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या रेडी होता है. रेडी होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे फ्रॉम पॉइंट B टू A तक क्या वो ट्रांसफर होते रहेंगे. कब तक ट्रांसफर होंगे दोनों का पोटेंशियल जब तक इक्वल नहीं होता है तब तक क्या बोलते वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है ट्रांसफर हो जाएंगे.
अब जब पोटेंशियल दोनों का इक्वल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स आल्सो फ्लो स्टॉप, तभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो तो फ्लो हो जाना वहाँ पर क्या है स्टॉप हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? यहाँ पर ध्यान में रखिए, इन द फिगर देयर आर टू कंडक्टर्स, conductor A is higher potential than a conductor B. When these two conductors are connected with the help of a connecting wire, the potential difference is created between these 2 points. दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो तो रेडी हो जाएगा। एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट बी टू ए, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो तो पॉइंट बी से क्या है ए तक क्या है ट्रांसफर होते हैं। कब तक ट्रांसफर होते हैं, अंटिल जो दोनों का क्या है बोलो तो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल क्या है सेम नहीं आता। जो दोनों का पोटेंशियल सेम आ जाएगा, जब जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो हो जाना वहाँ पर क्या हो तो स्टॉप हो जाएगा। Listen, now see, work has to be done against the electrical field to take a positive charge from a point of a lower potential to a point of a higher potential. Now see, work has to be done against the electrical field to take a positive charges from a point of a lower potential to the point of a higher potential. जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में ट्रांसफर हो जाएंगे तब वहाँ पर क्या हो तो वर्क डन है हो जाता है। Listen, potential difference and flow of electricity. जब भी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं पॉइंट बी टू ए तक क्या है ट्रांसफर हो जाएंगे। कब तक ट्रांसफर होंगे, जब तक उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो तो जीरो नहीं होता है, तब तक वो क्या हो तो ट्रांसफर होता है। लिसन, नाउ नेक्स्ट वन सी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। Potential difference of cell. Potential difference of cell. Potential difference of a cell. Now see, the difference in potential between the positive and the negative terminals of the cell is the potential difference of that cell. Now see, the difference in potential between the positive and negative terminal of the cell is the potential difference of that cell. Now see, दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वही उस सेल का क्या बोलते हो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। Listen, the difference in a potential between the positive and the negative terminal of the cell is the potential difference of that cell. हमें मालूम है इलेक्ट्रिकल सेल को दो टर्मिनल रहते हैं, वन इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, नेक्स्ट वन इज अ नेगेटिव टर्मिनल। इन दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वही उस सेल का क्या बोलते हो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। The potential difference is caused by the chemical reactions occurring inside the cell. So only that after the chemical reaction होने के बाद ही एक सेल में क्या बोलते हो पोटेंशियल डिफरेंस का है रेडी हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन एंड रिजल्ट्स इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ द सेल। पोटेंशियल डिफरेंस सेट द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन एंड रिजल्ट्स इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The electrons that is present in the electrical cell were are in the motion form. At that time, the electrical charges are flow from one point to the another point with the help of a conducting wire. तो electrical cell में जो electrons रहते हैं जब वो मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट करने के बाद भी उनमें क्या होता है इलेक्ट्रिकल करंट्स क्या रेडी हो जाता है और वही इलेक्ट्रिकल करंट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। The amount of work done to carry a unit positive charge from point A to B is called the electrical potential between the 2 points. Now see, the amount of work done to carry the positive charges from point A to B, positive charges point A से point B तक जाने में जो work done होता है उसको हमें क्या कहना है, the electrical potential difference between the 2 points, उसको हमें क्या कहना है तो electrical potential between the 2 points। ध्यान में रखिए यहाँ पर 2 points है और सी point A and B। The positive charges flow from a point A to B. Understand? The amount of work done यहाँ पर क्या बोला तो
वर्क डन हो रहा है टू कैरी द पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। पॉइंट ए टू बी तक जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उस टाइम जो वर्क डन हो रहा है उसको हमें क्या कहना है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों के बीच में का हमें क्या कहना है, उसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। नेक्स्ट वन सी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब हम डिस्कशन कर लेंगे next one is free electrons. So what is the meaning of free electrons? What is the meaning of free electrons? What is the meaning of free electrons? Free electrons. Every atom of a metallic conductors have two or more outermost electrons, and these outermost electrons are weakly bonded to the nucleus. These electrons are called as the free electrons. हर एक मेटालिक कंडक्टर्स को क्या बोलते हो, एटम्स रहते हैं, जैसे उसके दो या दो से ज्यादा आउटरमोस्ट शेल में क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और जो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो न्यूक्लियस के साथ क्या होते हैं, वीकली बॉन्डेड होते हैं। The outermost electrons that is present in the metallic conductors are weakly bonded to the nucleus. आउटरमोस्ट शेल में जो रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के साथ वीकली बाउंडेड होते हैं, उनका जो पावर है बहुत ही वीक रहता है, इसके उसको हमें क्या कहना हो, तो इट इज कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिसन, every atom of a metallic conductor has one or more free electrons which are very weakly bonded to the nucleus. These are called as the free electrons. Every atom of a metallic conductor, मेटालिक कंडक्टर के जो हर एक आइटम्स के पास क्या होता है, दो या उससे भी ज्यादा वन और मोर valence electron that is present in the outermost shell, and these valence electrons are weakly bonded to the nucleus. These electrons are called as the free electrons. उसको हमें क्या कहना है, तो free electrons कहते हैं। Now so the next one is a current flowing through a wire. तो वायर से अपना करंट किस तरह से फ्लो होता है इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, so we know that electrical currents is passing through the full current of electricity. Current flowing through a wire, current flowing through a wire. करंट फ्लोइंग वायर, एक मेटल वायर लेते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे किस तरह से फ्लो होंगे इसके बारे में हम डिस्कशन करें। और सी इस वजह से मेटल वायर एक अपना क्या बोलते हैं, मेटल वायर है, एंड दिस आर द इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। दिस आर द इलेक्ट्रॉन्स ना, मेटालिक वायर, ये क्या बोलते हैं अपना क्या है, एक मेटालिक वायर, मेटालिक वायर, एंड दिस आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। लॉस if a conducting wire is not connected to a cell, its free electrons move randomly in all directions in the space between the atoms. Now, if a conducting wire is not connected to the electrical cell, its free electrons move randomly in all directions in the space between the atoms. ध्यान में रखिए,
मेटेलिक वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते हो रैंडमली क्या बोलते तो ऑल डायरेक्शन में क्या है मूव हो जाते हैं जब तक आप उसको क्या बोलते हो इलेक्ट्रिकल सेल को वायर कनेक्ट नहीं करते। इफ द कंडक्टिंग वायर इज नॉट कनेक्टेड टू द सेल, अगर किसी कंडक्टिंग वायर को अगर हम सेल से कनेक्ट नहीं करते हैं उसमें जो रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते हो रैंडमली मूव्स इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ पर देखिए रैंडमली मूव्स इन ऑल, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है। जब तक कनेक्टिंग वायर हम इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट नहीं करेंगे तो जो मेटालिक वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और उनके आइटम के बीच में जो स्पेस रहता है वो किसी भी डायरेक्शन में क्या बोलते हो रैंडमली घूमते हैं। When we connect the ends of the wire to the two terms of the cell, electrical force act on the electron diameter. When we connect the ends of the wire to the electrical cell, the force act on the electrons. जब हम सेल को क्या है वायर से कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं वायर में उनके ऊपर क्या होता है फोर्स क्या है एक्ट हो जाता है। Being negatively charged, they start moving from negative lower potential to the positive higher potential terminal of the cell. जब हम उसको कनेक्ट वायर करेंगे the electrons flow from a lower potential to the higher potential. में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोअर पोटेंशियल से क्या होता है हायर पोटेंशियल में क्या होता है ट्रांसफर हो जाता है। Due to the flow of these electrons, current start flow through in the wire. This motion of electron is irregular, but there is a definite non-zero value of their average velocity, not zero. Due to flow of these electrons, flow start through the connecting wire. जब electrons flow हो जाएंगे तो अपना electrical pulse भी क्या होता है क्या है पास हो जाता है। And this is the irregular. ये क्या रहेगा? The motion of electrons are the irregular, but there is a definite non-zero value at their average velocity. इसका क्या होता है डेफिनाइट नॉन जीरो वैल्यू रहेगी उनकी एवरेज वेलोसिटी। Understand? Okay, we'll stop here and we continue on the next discussion.